हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के साथ। जैसा आप जानते हो कि हम जो है एक नए टॉपिक को लेके आए हैं आपके सामने, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल कॉरपोरेशन। तो इसके लिए जो है वो हमने कल जो है अगले जो इस डिस्कशंस में हमने बात की हुई है कि जिस तरह से हर चीज़ के दो दो जो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। इट मीन्स advantages and disadvantages of anything is there. As far as the relation of India and Nepal is concerned, we have discussed in earlier lesson that what were the areas, what were the fields, what are the factors which can influence the negativity in the relation between the two countries. But as far as relations between the two countries are concerned, there are some areas in which gaps are formed, means a relation can be hampered, and there are certain fields between the two countries that we will say that there is need or which can influence, mean improve the relation between the two countries. So yesterday we have discussed regarding the things which lay the negative impacts on the relation between the two countries. Today we will discuss that the areas of cooperation, the areas by which we can say that there areas which lay the positive impacts between the relations of two countries. As today we will discuss the factors or the areas of good relations between the India and Nepal. तो जैसा कि आप समझते हो, SAARC, in which there are 8 countries, there are 8 nations which are a member of the South Asian Association for Mutual Cooperation. Means India and Nepal are the countries of those nations, means they are the member of the SAARC. So they have signed the various agreements and treaties that they will help each other's country. What is going on in one country, the same is shared with other country, so that the countries can develop socially, politically, intellectually, whatever is there in every aspect, in every field of the nations. They will share whatever is good in one country. They can help to the other country which is lagging behind in that very field. So as far as the education of the both Nepal and India is concerned, India is somewhat advanced as far as the educational process is concerned. Means India जो है, it is advanced in educational system. The educational system of India is better than that of the Nepal. The infrastructure in the educational system is better in our India. Means there is a provision that many students can take admission in Indian schools. So in this regard, there are so many students of Nepal. Nepali students are there which can took admission in Indian universities. Means they are allowed due to this
nation, due to the member of SAARC nation, many students of Nepal youth are receiving higher education in our India. Means they are allowed, and for higher education they can choose our country, India, because the system, the Indian educational system is better than that of Nepal, and there is a infrastructure that is advanced in every field. It means so many students, so many youths of Nepal can come and receive education in Indian universities. फिर जो नेक्स्ट हो गया, अंडर द कोलंबो एग्रीमेंट 1954, there was agreement in Colombo, a SAARC meeting held in Sri Lanka in Colombo, and agreement was made, agreement was signed between different countries of the SAARC nation, and in that treaty, in that agreement, every country decided to help to contribute in the SAARC nations. Means इंडिया जो है, इंडिया ने भी उसका उसके मद्देनजर जो कोलंबो प्लान था, तो इंडिया ने Indian government took a decision and contribute towards the development of communication, irrigation and water supply for the development of the Nepal. Means under the agreement of Colombo plan, जो एक ट्रीटी, जो एक समिट हुई कोलंबो में, जिसमें सार्क नेशन ने हिस्सा लिया, और 1900 ये जो है 1954 में, मीन्स 1954 में ये प्रोग्राम हुआ, और उस एग्रीमेंट में सार्क नेशन जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि एक दूसरे की, जो भी सार्क नेशन है, उनकी फलाह बहबूद, उनकी बेहतरी के लिए जो है हर नेशन जो है दूसरे नेशन की हेल्प करेगा। जो कंट्री इस अहल है, उसमें जो सलाहियत है, मीन्स हैविंग द फैसिलिटीज, दे हैविंग द टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग इन एनी फील्ड्स, दे विल हेल्प, दे विल शेयर द सेम विद अदर नेशन, वो दूसरे में हेल्प करेगा। और इसी कोलंबो प्लान एग्रीमेंट 1954 जो है, उसमें इंडियन टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। तो इंडिया ने कर दिया, इंडिया डिसाइडेड, इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने जो है कम्युनिकेशन, मीन्स रसो रसायन, कहीं चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह, टू कम्युनिकेट, मीन्स टेक्नोलॉजी इज यूटिलाइज्ड फॉर द कम्युनिकेशन, टू कम्युनिकेट द मैसेजेस, टू कम्युनिकेट समथिंग। मीन्स टुडे जैसे हमारी मोबाइल फोन से, रेडियो है, हमारा कंप्यूटर है, ऑनलाइन सिस्टम है, ऑल दीज आर द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी which can help to the countries to communicate whatever they like to communicate. Means क्या मैसेज देना चाहता है कोई, क्या किसको देना चाहता है, तो इट इज़ द इंडिया जिसने कोलंबो प्लान एग्रीमेंट 1954 के तहत जो है नेपाल को इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प अलॉट। देन द नेक्स्ट सेक्टर अंडर दिस प्लान वाज इरिगेशन। इरिगेशन इज ए सेपरेट डिपार्टमेंट। एक इरिगेशन का, इसको वाटरिंग टू द प्लांट, मीन्स एक सिस्टम जिस तरह से हमारी द कंट्रीज कैन क्रॉप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टिवेशंस, एंड द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इज some year natural and some year it is made, it is artificial. Irrigation process, watering of plants, to means these wild plants does not have any need of irrigation,
but as far as the cultivation of crop is concerned, so without irrigation no one can cultivate crops, because on the basis of the characteristics and need, the features of a crop, they need irrigation accordingly. Means there are some plants, there are some crops which require continuous supply of water, and some need less water, and some crops needs a little water. कुछ को बहुत पानी चाहिए, कुछ को कम चाहिए, और कुछ को इससे बिल्कुल थोड़ा सा पानी चाहिए. As desert plants, as desert crops, those crops which are cultivated in desert areas means they require a little water. थोड़ा सा भी पानी हो जाए. Means now it depend upon the availability of the water. Can the crop plant need sufficient water for irrigation by the natural processes? हम देखते हैं कि कभी सूखा पड़ जाता है, हम बोलते हैं it is drought, सूखा पड़ गया और हमारी फसलें आउटपुट जो हमारा there was nothing, there is a decrease in the output of the production of the crop. तो कहाँ पे, जहाँ पे ऐसा सिस्टम जहाँ पे नेचुरल ये प्रोसेस ऑफ इरिगेशन है बाय रेन वाटर, इससे जो है रिवर के जरिए से वगैरह वगैरह होता है, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती. और ये वहाँ पे कंट्रीज ऐसी हैं, आप देखते हैं कि ये जो है डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स, डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्रीज जो है ऑन डिफरेंट दिस वाटर सोर्सेज पे डिस्प्यूट है, ये और इस पे ट्रीटी बनाए जाते हैं बेनिफिट के लिए भी. यहाँ पे क्या हम ऐसा नहीं करेंगे कि सिंपली वी कैन से दैट अंडर द कोलंबो प्लान इंडिया कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन टू द नेपाल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेपाल, टू cultivate, to get more and more crops. The irrigation process which needs certain type of help means India contributed in this regard and developed the irrigation system in this Nepal. Then next area, the next field was water supply projects. Means in irrigation is done by water, and once these steps, the positive steps are taken for the process of irrigation, it means then it depends upon the availability of the water. How much water is available for the country, for the state, for the area where it is needed, means at different places the availability of water is different. मीन्स कहीं पे पानी ज़्यादा, कहीं पे कम है, कहीं पे दरिया है उसकी वजह से होता है, कहीं पे नेचुरल रेन के ज़रिए से होता है, कहीं पे कैनाल्स वगैरह खोदी जाती है. और जहाँ तक कि इरिगेशन का सवाल है तो इट नीड्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और उसके लिए जो है वाटर सप्लाई का करना. वाटर सप्लाई मीन्स वाटर को कहीं से लाना है इरिगेशन प्रोसेस के लिए, और इसके लिए फंडिंग है, उसके लिए जो है वो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया नेपाल में. और वो जो है एक फील्ड ऐसे भी है जो इस कोलंबो प्लान के तहत जो है इंडिया और इस नेपाल के दरमियान है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट इन रिलेशंस में डालता है. जब इसने इंडिया कंट्रीब्यूटेड इन वेरियस फील्ड्स ऑफ द नेपाल फॉर इट्स डेवलपमेंट, सो दिस कैन ले ए पॉजिटिव इफेक्ट इन द रिलेशन बिटवीन द टू नेशंस. देन कम्स, उसके बाद ये आता है कि इंडिया अंडर दिस प्लान कंस्ट्रक्टेड सो मेनी रोड्स इन नेपाल. मीन्स जहाँ तक कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स का सवाल है, सेवरल रोड्स इन नेपाल फॉर द डेवलपमेंट आर कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. इंडिया गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया और बहुत सारे रोड्स जो है नेपाल में, चूँकि नेपाल वाज लेकिंग behind in this field, means the road connectivity was not available to all parts of the country, and where the water supply projects are initiated, and there was no provision of roads. For this, India contributed a lot for the development of the constructions of the
road so that the country, the Nepal will develop. So this was another step which can really and naturally influence the relation between the two countries. Then comes India has given a lot of economic aids to the Nepal for its development. Economic aids means in the field of economy. What is a country's position? How we can say that the country is underdeveloped, developing, or well developing? It depends upon the economy of the country. On the basis of the economy of the countries, the nation is divided into different groups. Means जैसे मैंने बोला कि कंट्रीज क्या वो अच्छी डेवलप्ड कंट्री है, क्या वो डेवलप कर रही है या वो अंडर डेवलपमेंट है. तो इसके लिए इंडिया जो है, नेपाल जो था विच वॉज ए डेवलपिंग नेशन, कोई डेवलपमेंट नहीं है एज द अमेरिका विच इज ए डेवलप्ड कंट्री ऑफ द नेशन. सारे में उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिवाइड डिफरेंट कंट्रीज. सो हम बोलेंगे कि नेपाल जो है एक छोटा सा मुल्क है और वो डेवलपिंग नेशन था, तो उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंडिया कंट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ असिस्टेंस, इकोनॉमिक एड्स जो है नेपाल को दी फॉर इट्स डेवलपमेंट. देन और ऐसा करने से जब मदद की गई इसको नेपाल को, तो रियली ये तो पॉजिटिव, ये इन्फ्लुएंस करेगा रिलेशंस को. जो रिलेशंस इनके दरमियान थे वो रिलेशन कहीं न कहीं से स्ट्रांग हो जाएंगे और करीब हो जाएंगे. देन किंग ऑफ नेपाल विजिटेड इंडिया सो मेनी टाइम्स. फिर जो किंग ऑफ नेपाल है, फिर नंबर 1 जो है वो जो है कोलंबो प्लान. नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. देन इकोनॉमिक एड. फिर होगा, फिर किंग ऑफ नेपाल विजिटेड इंडिया so many times. तो जब आना जाना होगा, जब एक दूसरे से इंसान मिलेगा, बातचीत करेगी, आपस में दो कंट्रीज के जो रिस्पांसिबल पर्सनैलिटीज हैं, डिग्नेटरीज जो है, वो आपस में बात करेंगे, तो कुदरती बात है रिलेशन जो हैं वो बढ़ते हैं. इन 1977 में जो है मोरारजी देसाई इन 1977 मोरारजी देसाई देन द PM ऑफ इंडिया विजिटेड नेपाल. तो 1977 में जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई visited Nepal. In 1983, PM of Nepal. In 1983, PM of Nepal visited India. और इससे जो है कहीं न कहीं इनके रिश्तों में सुधार होने लगा. तो एट दैट टाइम जब ये आया तो उस समय मिस्टर सूर्या बहादुर थापा जो थे वहाँ के मिस्टर सूर्या बहादुर थापा जो थे वो जो है नेपाल के PM थे. और 1983 में वो इंडिया विजिट किया. और विजिट किया whenever this PM of India visited Nepal or the PM of Nepal visited to India, means
इससे जो है एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला। एंड रियली द विजिटिंग ऑफ द हायर ऑफिशियल ऑफ वन कंट्री टू अनदर जो जाएगा, रियली दिस विल प्रूव, उसने प्रूव किया। और कहीं भी ऐसा है जहाँ भी आना जाना शुरू होगा तो लोग एक दूसरे के जानकार बनते हैं, अच्छे एक दूसरे का पता चलता है, हमसाये का पता चलता है। मीन्स कहीं न कहीं ये जो रिलेशंस इससे उभरते, इससे मौका मिलता है कि जब भी ये जो लीडर्स एक कंट्री का दूसरी में जाएगा, कहीं न कहीं इनसे इन्फ्लुएंस होता है। और जब वो ये सूर्या बहादुर शास्त्री वहाँ नेपाल के इसने विजिट किया तो उन्होंने जो है दिल्ली में एक एग्रीमेंट किया, वाटर प्रोजेक्ट जो है एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि दे विल टेक द 3 वाटर प्रोजेक्ट्स। इस समय वो क्या करेंगे कि दे विल टेक 3 वाटर प्रोजेक्ट्स। और जो ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं वाटर के, जो इन्होंने 3 प्रोजेक्ट इनको इनिशिएट करने का, इनको बनाने का प्रोग्राम बनाया, तो इससे जो है दोनों कंट्रीज को फायदा होने लगा। इससे जो है मुल्क की एरिगेशन में फायदा होने वाला था और कहीं न कहीं उससे जो है दोनों कंट्रीज की वो जो है वो दोनों कंट्रीज जो हैं इससे दोनों को इसकी इकोनॉमी जो है वो बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि दोनों जो है इसको दोनों ने एग्री हुए और दोनों इससे जो है बेनिफिट मिलेगा दोनों को। और इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी, दोनों इकोनॉमी सेक्टर जो है बोथ द कंट्रीज का डेवलप करेगा और इससे भी रिलेशन जो है मिलने में फायदा होगा। इन मार्च 1983 में 1983 in March 1983 India agreed to provide assistance of 8.7 crores 8.7 crores जो है मार्च 1983 में इंडिया जो है दोनों के दरमियान बातचीत हुई और इंडिया जो है मान गया, इंडिया was agreed to provide assistance of 8.7 crores for the expansion of बीर हॉस्पिटल। नेपाल में जो है वो बीर हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए, जो नेपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बीर हॉस्पिटल था, तो इंडिया was agreed to give a financial assistance of 8.7 crore। 8.7 means near about 9 crores जो है वो इंडिया ने हेल्प कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया नेपाल को, so that the expansion of बीर हॉस्पिटल as far as the this infrastructure of hospital is concerned, its building जो भी है, बिल्डिंग है, इसकी मेडिसिन है, क्या भी है, उसको एक्सपेंड करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए इंडिया ने इसका इतना दे दिया। दिस वाज ए पॉइंट, दिस वाज ए एरिया वेयर द रिलेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज इम्प्रूव, इसमें इम्प्रूव हुए। देन अब हम शॉर्ट में इसको करेंगे, चूँकि ये जो इतना लंबा हो जाएगा तो इसको हम अब थोड़ा सा थिंग्स को जो है कम एक्सप्लेन करेंगे। देन जो है फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट नेपाल में बनी इन 91 में जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी। और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट की इन इट्स फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, दे अनाउंसेस दैट दे विल मेंटेन द good relation with the this India. They will maintain the good relations with India। and ये निर्णय, ये फैसला जो है वहाँ की इलेक्टेड जो आ गई, जिसके पीएम जो थे गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, जिसके
वो जो पीएम थे गिरिजा प्रसाद कोइराला, तो उसने जो है वो पहली ही इस मीटिंग में पहले ही बनते हुए और पहली फर्स्ट स्टेप में जो है फर्स्ट पॉलिसी में ही इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया। ऑन अक्टूबर 1992 इंडिया एंड नेपाल डिसाइडेड टू एक्सपेंड बायलैटरल रिलेशनशिप। 1992 में फिर दोनों कंट्रीज ने जो है एक इनिशिएटिव लिया, एक डिसाइड किया कि बोथ द कंट्रीज विल जो है वो विल डेवलप बायलैटरल कोऑपरेशन। दोनों के अंदर जो भी हो हम दो कंट्रीज मिलके एक जो है अच्छा काम करेंगे। इन 1995 they agreed to provide transit facilities. ट्रांजिट मीन्स एक दूसरे के कंट्रीज में आएंगे, उनके गुड्स जो है एक दूसरे के कंट्रीज में लेंगे, और बोथ द कंट्रीज एग्री कि वो एग्री किया उन्होंने कि नेपाली गुड जो है वो कंधा मुंबई में लाए जाएंगे, क्योंकि कंधा मुंबई इज वन ऑफ द मार्केट प्लेस इन मुंबई विच रिमेन्स ओपन फॉर 24 आवर्स। एक कंधा जो है मुंबई में एक ऐसी मार्केट है एंड विच इज अ होलसेलर, द कंधा मार्केट इन मुंबई विच इज a wholesaler in onion and potatoes means the Nepali goods are allowed to transit there, मतलब वहाँ से लाके वहाँ उस मार्केट प्लेस में नेपाली चीज़ों का लाना नेपाल वहाँ के लिए इंडिया जो है वो एग्री हो गया। देन उसके बाद 1996 में जो है इंडिया Nepal signed a treaty on exploiting the Mahakali river basin for electricity and irrigation. Means there was a basin of ये महाकाली रिवर है, एक नदी है जिसका नाम महाकाली रिवर का नाम से जानी जाती है। तो both the countries agrees to exploiting, means both the countries agreed that they will use the water of this Mahakali river for the process of generating electricity and for the process of this irrigation, so that the crops production of the both the countries will improve, and by sharing this treaty, by sharing this river basin for generating electricity and the irrigation system, both the country there are chances of coming nearer to the each other. इंडिया और ये जो है इसमें चांसेस लगते हैं जब वो एक ही चीज पे दोनों के काम करेंगे, मींस दोनों का सोर्स जो है एक ही होगा, दोनों उसी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेंगे और दे विल शेयर। व्हेन देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ समथिंग बिटवीन द टू कंट्रीज दैट रियली lay the positive impacts between the relation between the two nations. इससे भी बढ़ सकता है। then comes in June 5th 1997 PMF India I.K. Gujral visited Kathmandu। 97 की बात है जब then the Prime Minister of India was I.K. Gujral, and that I.K. Gujral visited to Nepal for 3-day visit, 3 दिन के विजिट के लिए गया, और उसमें भी जो है उसमें जो है और ज़्यादा रिलेशन करीब हो गए। उस विजिट में है इंडिया एक्सेप्टेड द नेपालीज रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल ट्रांजिट रूट। उसमें जो है जब आई के गुजराल वहाँ पे 3 दिन के विजिट पे गए, and a request was made by the Nepali government that they request for the additional road, means एक तो था जो होता एक additional road to जो कहाँ के लिए था, additional road for the Bangladesh via फुलबरी इंडिया जो है एक जगह है इंडिया की, वहाँ से जो है बांग्लादेश के लिए एक रोड एक्स्ट्रा एडिशनल रूट की रिक्वेस्ट की, और आई के गुजराल इस पे
एग्री हो गए। देन नेपाली पीएम जो है विजिटेड इन 2000, गिरिजा प्रसाद कोइराला जो थे वो अगेन इंडिया में आए और उस समय जो है वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे, वो एक्सपेंड करेंगे, वो मतलब उस समय इसने जो है मिस्टर गुजराल ने जो है गिरिजा प्रसाद कोइराला ने वहाँ की हुकूमत को उस समय क्या कर दिया था, वहाँ की वो उस समय सदर थे वहाँ के, तो उसने इसको वहाँ के पीएम को और वहाँ के लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर दिया और वो जो है फंडामेंटल राइट्स को उसने तोड़ दिया, उसको मीन्स फंडामेंटल राइट ऑफ द कंट्री के साथ खिलवाड़ किया। उस समय इंडिया ने इस पे इंटरनल अफेयर्स पे कुछ मुदाखलत नहीं की, कैन नॉट मेक इंटरफियरेंस इन द सिस्टम, बट इंडिया रिक्वेस्टेड नेपाल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। उसने बोल दिया कि यहाँ पे इसको मेंटेन करना है दोबारा से। तो ये जो था ये हमारा इसके रिलेटेड था कि कौन कौन से इसके सेक्टर्स हैं जहाँ पे इसको मेंटेन किया जाता है रिलेशंस को। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। तो नेक्स्ट में हम आगे बात करेंगे। थैंक्स।